Now let's take more examples. Find the intervals in which the function fx is equal to 10 minus 6x minus 2x square is strictly increasing and strictly decreasing. तो बेसिकली हमें इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीज निकालना है. तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक करने के लिए तो एफ डैश एक्स हम निकालें. तो लेट्स से एफ डैश एक्स मीन्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो क्या होगा 0 माइनस 6 माइनस 4x minus 4x, which means we can write this as 4x plus 6. Now for strictly increasing function condition क्या होती है कि f dash x should be greater than 0. Now हमने ये भी बात की थी कि f dash x we can also write f dash x greater than equal to 0 but provided कि f dash x equals to 0 सिर्फ discrete points पे होने चाहिए. तो to avoid that sort of a thing कि हमें देखना पड़े कि f dash x कहाँ पे 0 है कहाँ नहीं, हम सीधे f dash x greater than 0 चेक करेंगे for strictly increasing. तो f dash x हमारा क्या है minus 4x plus 6 is greater than 0. If you take the minus sign on the other side तो inequality reverse हो जाएगी. तो 4x is greater than minus 6, therefore x is less than minus 6 by 4 which is 3 by 2. तो interval on which function fx is strictly increasing is x should be less than minus 3 by 2 यानी minus infinity से minus 3 by 2. Or we can also write this as x is less than minus 3 by 2. Now for strictly decreasing function के लिए f dash x should be what? Less than 0. Again the same concept, we can also write f dash x less than or equal to 0 but we'll have to make sure कि f dash x 0 सिर्फ डिस्क्रीट पॉइंट्स पे हो. तो उस चीज को हम लोग देखने से अच्छा उसको ले ही नहीं रहे. f dash x सिर्फ लेस देन 0 होना चाहिए थ्रू आउट. तो ये क्या हो गया माइनस 4x प्लस 6 इज लेस देन 0. माइनस साइन अदर साइड ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. देयरफॉर 4x इज ग्रेटर देन माइनस 6, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन माइनस 3 by 2. तो देयरफॉर इंटरवल ऑन विच function fx is decreasing is x belongs to minus 3 by 2 से infinity or x is greater than minus 3 by 2. Anything you can write. Take the next question. You have to find the intervals on which the function is strictly increasing and strictly decreasing and the function is given by minus 2x cube minus 9x square minus 12x plus 1. ठीक है. इंटरवल ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के लिए हमें f dash x चाहिए. तो f dash x would be minus 6x square minus 18x minus 12. Now first case strictly increasing. Now strictly increasing के लिए कंडीशन क्या है? f dash x should be greater than 0. तो ये क्या आ जाएगा? If we can take minus 6 common तो क्या होगा x square plus 3x plus 2 should be greater than 0. On taking the negative sign on the other side तो क्या बचेगा x square plus 3x plus 2 should be less than 0. Now इसको factorize करें तो x plus 2 into x plus 1 is less than 0. तो therefore if we want to use the Webby method तो क्या होगा minus 2 से minus 1 positive negative positive. हमें चाहिए negative, therefore x should lie between minus 2 and minus 1. तो interval of increase कह लें या the interval on which the function is strictly increasing is minus 2 to minus 1. Similarly strictly decreasing के लिए f dash x should be less than 0 which means minus 6 into x square plus 3x plus 2 should be less than 0. तो inequality reverse हो जाएगी on taking the minus sign on the other side greater than 0 which means x plus 1 into
x plus 2 is greater than 0. Again use the wavy method, minus 2 to minus 1. क्या होगा? प्लस माइनस प्लस, तो हमें तो पॉजिटिव ही चाहिए, मतलब प्लस, तो या तो x क्या हो, ग्रेटर देन माइनस 1 और x लेस देन माइनस 2. तो फॉर आवर फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, the interval should be either greater than minus 1 or less than minus 2. मतलब x की वैल्यू या तो माइनस 1 से इंफिनिटी हो या फिर माइनस इंफिनिटी से माइनस 2, तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. Now let's take the next question. Find the intervals on which the function fx is equal to x plus 1 cube into x minus 3 cube is increasing and second part decreasing. Now इस बार इन्होंने strictly increasing strictly decreasing नहीं बोला है, मतलब we can have values of x जहाँ पे f dash x 0 हो रहा है in an interval. Now तो सबसे पहले increasing decreasing निकालने के लिए differentiation चाहिए, तो differentiating with respect to x तो f dash x क्या होगा, हम यहाँ पे क्या यूज कर लें, प्रोडक्ट रूल. तो क्या होगा, x प्लस 1 का क्यूब बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 3 का क्यूब प्लस x माइनस 3 का क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 का क्यूब. ये तो पावर फंक्शंस है, तो x माइनस 3 का क्यूब क्या होगा, थ्राइस x माइनस 3 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, और x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगा. सिमिलरली x माइनस 3 का क्यूब इंटू थ्राइस x प्लस 1 का पावर 3 माइनस 1 और x प्लस 1 का 1. तो चेक करिए क्या आया, x प्लस 1 क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वायर थ्राइस प्लस थ्राइस एक्स माइनस 3 क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर. तो हमें कॉमन क्या मिला, थ्राइस एक्स प्लस 1 स्क्वायर एंड एक्स माइनस 3 स्क्वायर. तो अंदर ब्रैकेट में बचा एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 3 विच इज थ्राइस ऑफ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 2x माइनस 2. तो ऑब्वियसली हमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो देखो 6 टाइम्स x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1. नाउ डिफरेंशिएशन तो हो गया. नाउ फॉर फर्स्ट केस इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर हमारे फंक्शन को इंक्रीजिंग होना है तो किस इंटरवल में x रहना चाहिए हमें निकालना है. तो द कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन इज f dash x शुड बी ग्रेटर देन और equal to 0. In this case we have to make sure कि f dash x या तो पॉजिटिव वैल्यू दे या f dash x 0 दे बट अ कंटिन्यूस इंटरवल में हो, या डिस्क्रीट पे भी हो तो चलेगा, क्योंकि इस केस में तो हमारे को दोनों ऑप्शंस हमारे लिए सही हैं. लेकिन जब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं तो फिर हमारा f dash x पॉजिटिव होना चाहिए था और f dash x 0 है, सिर्फ डिस्क्रीट पॉइंट्स पे 0 होना चाहिए. जब आपको इंक्रीजिंग बोला जाता है तो वो डिस्क्रीट पॉइंट पे हो या कंटिन्यूस पॉइंट्स में हो, मेक्स नो डिफरेंस, वो दोनों केसेस हमारे लिए एक्सेप्टेबल है. तो इस बार क्या हो गया, 6 टाइम्स x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नाउ सिंस पावर्स ऑफ x प्लस 1 एंड x माइनस 3 आर इवन, तो हम इसको अपनी इनइक्वालिटी से एक बार हटा के सिर्फ जो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा, x माइनस 1 पे. x प्लस 1 का होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड x माइनस 3 का होल स्क्वायर विल आल्सो बी ऑलवेज पॉजिटिव. तो जो साइन आएगा इनइक्वालिटी का विल बी बिकॉज ऑफ x माइनस 1. तो इससे हमें क्या मिला, x शुड बी ग्रेटर देन 1. अब x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा. मोर ओवर हमने x माइनस 3 और x प्लस 1 ये दो फैक्टर्स हटा लिए थे वाइल सॉल्विंग द इनइक्वालिटी, बिकॉज हमने कहा था ये हमेशा पॉजिटिव होंगे. लेकिन ये फैक्टर्स 0 भी होंगे एट x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 3. और हमारा जो f डैश x है वो क्या है, वो 0 वैल्यू भी ले सकता है. तो वो किन पॉइंट्स पे आएगा, व्हेन x इज माइनस 1 एंड x इज 3. तो ये पॉइंट्स भी हमको अपने इस सोल्यूशन में लेने पड़ेंगे. अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में x इज इक्वल टू 3 तो इनकॉर्पोरेट हो गया, लेकिन माइनस 1 नहीं आया, इसको भी फिर हमको लेना पड़ेगा. देयरफॉर अगर फंक्शन को इंक्रीजिंग होना है तो x की वैल्यू क्या हो, फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 हो या 1 से ज्यादा हो, यूनियन माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 पे f डैश x 0 होगा और 0 वैल्यू f डैश x की हमें एक्सेप्टेबल है.
तो इंक्रीजिंग के लिए ये इंटरवल है। नाउ डिक्रीजिंग की जब बात करें, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो क्या होगा, एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो 6 ऑफ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी बिकॉज ऑफ एक्स माइनस 1 ओनली। तो x इससे क्या है, x शुड बी लेस देन 1। लेकिन जब x लेस देन 1 होगा, ये तो हमें एक्सेप्टेबल है, लेकिन x प्लस 1 0 कब होगा, जब x माइनस 1 होगा, और x माइनस 3 0 कब होगा, जब x 3 होगा। तो ये दो वैल्यूज ऑफ x भी हमें लेनी पड़ेंगी, बिकॉज f डैश x 0 भी एक्सेप्टेबल है। तो जब 0 एक्सेप्टेबल है हमें, तो -1 रखने पे भी 0 मिलेगा f डैश x, और 3 रखने पे भी f डैश x 0 मिलेगा। तो ये वैल्यूज अगर हमारे सॉल्यूशन में आ रही हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आ रही तो हमें इन्हें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो -1 तो उसमें आ गई, बिकॉज 1 से कम हो रही है टिल माइनस इन्फिनिटी, तो उसमें -1 आ जाएगा। लेकिन 3 की वैल्यू नहीं आएगी, तो इसको हमको अपने सॉल्यूशन में लेना पड़ेगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3। दिस विल बी योर इंटरवल ऑफ डिक्रीज, या ये वो इंटरवल है जिसमें फंक्शन आपका डिक्रीजिंग नेचर का होगा।